होगी। Okay, so hello everyone, good evening, and welcome to today's session, which is Life in Computer Science and Engineering. So, this is something which is according to my experiences, as far as I know, as far as I have explored. It is something like it's a brief overview of the next 4 years or 3 years of your computer science and engineering so that you can plan and decide your career path accordingly. Okay, and so let's begin with it. Yeah, I'm Anubhav Madhav, your GDC lead. Basically, on a large aspect, computer science and engineering is divided into three categories, which is development, research, and competitive programming. But to simplify it for you, we can divide it into 10 parts, which is maintaining a decent CPI, data structures and algorithms, which is one of the most important subjects in your 4 years. So focus on it very well, learn it very well, because most of the companies ask questions from DSA in their interviews. Then we have competitive programming, development, research, and open source contributions. And I will tell you then that how can you have an impressive profile and how will it benefit you. And then we'll talk about some campus ambassador roles, communities, groups, and clubs, and also personality development because it is one of the most important life skill or thing which you can have in your college life. So it will help you throughout your life. Okay. And so we'll talk about each of them one by one. So first is maintaining a decent CPI. It depends on your goal. See, I am just considering that maximum of you are here for placement. So it's not a rule that there is a minimum of 7.5 CPI or whatever. जितनी ज़्यादा CPI हो उतना अच्छा है. But all I want to say is that don't struggle hard for a CPI greater than 9. It's better you if you have a CPI of greater than 9. But ऐसा ना हो that तुम सिर्फ courses पढ़ते रह जाओ and you do not discover the other aspects of CSE, which is like development, building projects, competitive programming or other things. So like minimum CPI criteria according to the placement policy is 6. So minimum 6 होनी चाहिए. And most of the companies like Amazon वो तो CPI criteria देखते भी नहीं. उनके लिए बस ये है कि तुम्हारी मिनिमम 6 है तो दे आर रेडी टू इंटरव्यू यू इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड इन देयर कोडिंग राउंड. ओके. एंड जो मास्टर्स वाले हैं हु आर प्लानिंग फॉर गेट GRE और GMAT, so it's better if you have a minimum of 8 or 8.5. You might be already knowing that they prefer a strong academic student. And जिनका फैमिली बिजनेस है तो तुम्हारे तो मजे ही हैं, तो चिल करो. बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि 7.5 ही मिनिमम जरूरी है. 6 है तो भी तुम्हें जॉब मिल सकती है, 9 है तो भी मिल सकती है, बट 7.5 इज समथिंग डिसेंट. तो 7 इज ऑल्सो गुड, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं वो मिनिमम 7 CPI कंसिडर करती हैं. और उसके बाद कुछ कुछ होती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो कभी कभी 7.5 और कभी कभी 8 CPI भी रखती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और द नंबर ऑफ वैकेंसीज. अगर वैकेंसीज ज़्यादा है तो दे कैन कीप अ क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम 7.5, अदरवाइज 8. और बाकी जो मैक्सिमम कंपनीज होती हैं दे कीप इट टू 7, बट इट्स बेटर टू हैव 7.5 जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. ठीक है. एंड ऐसा है कि ये मैंने पॉइंट इसलिए बताया है जिससे कि कई बच्चे क्या होते हैं कि 9 के ऊपर CPI लाने में लगे रहते हैं एंड दे डोंट बिल्ड प्रोजेक्ट्स और डू अदर थिंग्स. तो मेरे ही बैच के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी CPI तो 9 के ऊपर है बट दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट एन इंटर्नशिप. दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस. CPI में भी तुम्हारा एक अच्छा लेवल हो, डेवलपमेंट में भी हो और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी हो, तो इट विल बी लाइक परफेक्ट. एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. ये कई लोगों को बताई नहीं जाती, कई लोगों को पता भी नहीं होता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. तो ये बात याद रख लो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और टॉपिक इन योर 4 years, because majority of the companies are going to ask questions from DSA in their interviews from this topic itself. अब ये सीखना कैसे है, तो इसमें दो लैंग्वेजेस प्रेफर्ड होती हैं लाइक C या C++. अब वो इसलिए बिकॉज दे आर फास्टर एंड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. अगर तुम्हें पता हो वो क्या होती है तो आगे बताते हैं उसमें क्या होता है. बट C और C++ इज फास्टर एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट. और दूसरी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखने के लिए वो है जावा. एंड दैट इज लाइक उसके लिए तभी जाना if you are comfortable with it. अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो, इट्स बेटर. यू कैन ऑल्सो गो फॉर पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, बट क्या है कि अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट अलाउइंग द पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट इन देयर इंटरव्यूज. पाइथन अभी रिसेंटली गूगल ने लास्ट ईयर आई थिंक स्टार्ट किया, ये शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि दे हैव अलाउड पाइथन
in their interviews last year itself, and काफी companies अभी भी नहीं करती. Most of them go either for C++ or for Java. तो वो रखो तो ज़्यादा बेटर है. एंड एक्चुअली क्या है कि पाइथन में कई सारे तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स काफ़ी ईजी बना दिए हैं, तो तुम्हें कंसेप्ट इतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे इफ़ यू गो विद पाइथन. बट सी प्लस प्लस और जावा इज लाइक अ कोर लैंग्वेज, तो तुम्हें डीएसए समझने में भी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स अच्छे से समझ जाओगे. तो चूज वन अमंग देम. एक काम करना, इफ यू वांट टू ट्राई, इफ यू आर रियली न्यू टू प्रोग्रामिंग, just try each of the language for around 7 days or 10 days strictly, एंड जिसमें भी तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो अच्छे से समझ में आ रही है, स्टिक टू दैट वन. बट एक प्राइमरी लैंग्वेज अपनी बना के रखना, बाकी तुम कितनी भी सीखो, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, एक प्राइमरी लैंग्वेज जैसी कि कोई भी तुम्हें क्वेश्चन दे, दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दैट लैंग्वेज. एंड रिसोर्सेज टू लर्न एंड प्रैक्टिस डीएसए. तो गीक्स फॉर गीक्स इज अ वेबसाइट. यहाँ मैंने लिंक ऐड कर दिया. आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी विद यू ऑल. तो गीक्स फॉर गीक्स इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, और कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है उसके लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के लिए. इट इज ब्लॉग रिलेटेड, इसमें वीडियोस नहीं है, मतलब इनका चैनल अलग से है जिसमें वीडियोस आती हैं, बट दैट आर नॉट ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स. बट मोस्टली लोग यहाँ से पढ़ के ही अपने डेटा स्ट्रक्चर्स सीखते हैं एंड इन पे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पे. और फिर वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आई विल प्रेफर कि जावा है तो कुणाल कुशवाहा का एक चैनल है यूट्यूब पे, यू शुड प्रेफर दैट प्लेलिस्ट. यहाँ मैंने लिंक ऐड कर दिया है. एंड सी और सी प्लस प्लस से प्रेफर कर रहे हो तो देर इज अ कोर्स बाय अब्दुल बारी ऑन यूडेमी. इट इज अ पेड कोर्स, बट इनकी जो एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट है, that is available on YouTube. And if you want this course for free, then you can try for some torrent files or something. I have that. If you want that, I'll be sharing it with you on your WhatsApp group. And ये हो गया, बट ये याद रखना कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे ही तुम्हारा कोर्स स्टार्ट हो, सेकंड सेमेस्टर में you'll be having डेटा स्ट्रक्चर्स, थर्ड सेमेस्टर में you'll be having एल्गोरिथम्स. तो अच्छे से पढ़ लेना, सीख लेना. इन केस प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं अगर किसी को समझ ना आए, तो एटलीस्ट जस्ट नोट डाउन द टॉपिक विच दे आर टीचिंग, एंड यूट्यूब पे जाकर के अपने फेवरेट यूट्यूबर से वो टॉपिक पढ़ लेना ऑन द वेरी सेम डे, एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. अभी 1 2 3 साल तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, 3 साल बाद या 2 साल बाद काफी अच्छी जगह पे होगे. ठीक है. आफ्टर दिस, डीएसए के अलावा उन्हें और क्या चाहिए होता है इंटरव्यूज में, तो इट इज प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स के लिए वी हैव डेवलपमेंट, बट पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं. तो सीपी समथिंग विच इज रियली वेरी गुड, बट इट इज नॉट कंपल्सरी. लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इज कंपल्सरी इफ यू वांट अ गुड प्लेसमेंट, वरना तो कुछ कंपल्सरी नहीं है. बीटेक भी नहीं है, छोड़ दो अगर मन नहीं है तो. बट सीपी इज समथिंग विच इज नॉट कंपल्सरी, बट इट्स बेटर टू हैव अ गुड हैंडेड सीपी टू. लाइक तुम क्या करोगे, अगर इफ यू आर रियली वेरी गुड एट डीएसए, देन यू विल बी क्वाइट गुड एट सीपी टू. बट ऐसा हो अगर कोई है कि जिसको डीएसए बहुत अच्छे से आता है बट सीपी नहीं करी, तो डीएसए वाले दे विल बी एबल टू क्रैक कंपनीज लाइक Amazon और माइक्रोसॉफ्ट वेरी वेल. बट जिसको सीपी आती होगी, दे विल बी क्रैकिंग कंपनीज लाइक गूगल और फेसबुक. लाइक इट विल हेल्प देम बिकॉज उनका लेवल थोड़ा और भी ज्यादा हाई होता है. स्पेशली गूगल का, दे आस्क टू मच फ्रॉम डायनेमिक प्रोग्रामिंग. it's a subject in DSA, okay? It's a course, it's a topic. And then it is like Fangam, अगर पता हो तो it is Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google and Microsoft. तो अगर इन कंपनीज में जाना है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी चाहिए. यू कैन गो विदाउट दैट टू. सिर्फ डीएसए इनफ हो और अच्छे प्रोजेक्ट्स हो तो भी चलेगा, बट इट्स अ गुड हैंड. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आती हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू गेट इनटू दिस कंपनीज. ठीक है. एंड ट्राई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. स्टार्टिंग में किसी को नहीं आती. आई थिंक कल या परसों ही किसी का मैसेज आया था तुम्हारे बैच में से दैट ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस. स्टार्टिंग में किसी से नहीं होता है, डिमोटिवेशन होगी, बट हार मत मानना. 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना भी लगे रहना, लाइक, बट धीरे धीरे करके जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशंस. सिर्फ सॉल्यूशंस अगर गूगल कर ली एंड फिर तुमने वहीं पेस्ट कर दिया अपने वेबसाइट पे, तो दैट इज नॉट इनफ. क्योंकि in interviews what they will be looking for you is your thinking process, ki in which way you approach to the solution. So it is better to practice thinking about the solution in various ways. तो अगर टाइम लग रहा है शुरू शुरू में, तुम्हें 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, एक सॉल्यूशन नहीं मिल रही, तो भी कोई बात नहीं. बट 1 दिन तो ज्यादा हो गया स्टार्टिंग में, बट सॉल्यूशन देख लेना. बट सॉल्यूशन एकदम कॉपी मत करना. अगर कहीं गूगल से देख रहे हो तो या गिटहब पे देख रहे हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सॉल्यूशन, एंड उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन ला सकते हो फिर तो वो भी सोचना. इट इज लाइक दे आस्क यू फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन. अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में किसी को पता हो, कुछ को पता होगा, तो दे विल आस्क यू फॉर द मिनिमम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी.
दैट इज अ टॉपिक इन DSA, इसके बारे में अभी बात नहीं करते। बट अगर तुम्हें CP पसंद आ रही है तो मेक अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ CP डेली। CP का नहीं तो DSA का एक क्वेश्चन तो होना चाहिए। DSA के एक क्वेश्चन तुम्हें कहाँ मिल जाएंगे? Geeks for Geeks पे। देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑन Geeks for Geeks बेस्ड ऑन DSA। अब DSA एंड CP के क्वेश्चंस डिफरेंट कैसे हैं? सो इट्स लाइक DSA पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स पे कि एरे को रोटेट करो या फिर लिंक लिस्ट को रिवर्स करो, ऐसे काफी हाई लेवल, ठीक है। एंड CP में इट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन जो स्टोरीज वगैरह तुमने देखे होंगे कि अमित बॉट 5 ऑरेंजेस और 7 ऑरेंजेस, तो वैसे वाले। तो अगर तुम्हें पसंद आ रही है CP तो यू कैन प्रैक्टिस दैट, अदरवाइज DSA इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड प्री रिक्विजिट फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अगर पहले से तुम्हें DSA आती हो, नंबर सिस्टम्स आते हो एंड कोडिंग अच्छे से आती हो, तो CP में तुम थोड़ा अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। एंड इसके लिए कोडिंग की प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो? पहले तो सीखोगे ऑब्वियसली कहीं से, यूट्यूब से या यूडेमी से या फिर अपने प्रोफेसर से। देन यू कैन प्रैक्टिस दैट क्वेश्चंस। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस डायरेक्ट क्वेश्चंस, नॉट डायरेक्टली जंपिंग इनटू CP। उससे पहले यू शुड बी नोइंग अबाउट योर लैंग्वेज वेरी वेल। तो प्रैक्टिस ऑन ईदर हैकररैंक और ऑन हैकरअर्थ, दैट इज फॉर बिगिनर लेवल, ठीक है। once you are done with this, once you like for example, let's say you have got 5 star in Java on HackerRank after around 20 days or 30 days. Then after that, you can switch to CodeChef or Codeforces if you are interested in CP. क्योंकि HackerRank is something which will help you to practice your programming language and concepts. CodeChef and Codeforces is something like competitive programming. अब मीडियम लेवल की होती हैं बट दैट टू इज हार्ड, एंड टॉप उससे भी ज्यादा हाई लेवल जाना है सो दैट यू कैन क्रैक गूगल एंड फेसबुक इजिली, दैट इज टॉप कोडर एंड स्पॉच। वो काफी हाई लेवल होती है, वहाँ पे टॉप कोडर्स होते हैं वर्ल्ड के। एंड अदरवाइज देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड लीड कोड, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छी है। यहाँ पे कंपनी वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तुम्हें, इफ यू आर टारगेटिंग वन स्पेसिफिक कंपनी लाइक Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो प्लान अकॉर्डिंगली। अभी डरना मत इतनी सारी चीजों से, अभी नहीं करना तुम्हें ये सब, ये अगले 3-4 साल में कंटिन्यू रखना है। बट ये जितनी जल्दी शुरू कर दो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कुछ वर्ल्ड फेमस प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो है दी ACM IGPC, वर्ल्ड का बेस्ट। फिर गूगल के कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन हैं, गूगल कोड जैम, गूगल हैश कोड एंड गूगल किक स्टार्ट। हैश कोड के बारे में तो तुम्हें रिसेंटली इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी। इट्स अ टीम बेस्ड कोडिंग कॉम्पिटिशन विच इज अबाउट टू हैपन सून इन मार्च। इसके बाद वी हैव टॉप कोडर ओपन, जस्ट लाइक फ्रेंच ओपन वैसे ही, एंड फेसबुक हैकर कप एंड मेनी मोर। सो इफ यू आर interested in CP, it is not important at all, it is not compulsory, but if you're interested in it you can try that. But I'm just repeating this once again कि ऐसा मत करना कि या तो तुम सीधे सिर्फ डेवलपमेंट में घुस जाओ या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुस जाओ। मेंटेन अ बैलेंस फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। जितना ज्यादा बैलेंस बना के रखोगे तुम, उतना ही अच्छी तुम्हारी प्लेसमेंट होगी, उतने ज्यादा ऑफर्स तुम्हें मिलेंगे, उतने अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। बट सिर्फ CP में घुस जाओ और डेवलपमेंट कभी करी नहीं तो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ डेवलपमेंट में घुस जाओ तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी कभी। तो इट्स बेटर टू मेंटेन द बैलेंस, दोनों ही अच्छे हैं बट किस कोई एक में घुस जाओ दैट इज नॉट गुड, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिटवीन CP एंड डेवलपमेंट। CP नहीं भी कर रहे हो तो DSA तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। Then about development, there are various fields like अभी last session में our mentors and volunteers told you about web development, Android, iOS, Flutter. Flutter is something, Flutter development is something which uses the language Dart, ठीक है। तो उससे वेब, एंड्रॉइड और iOS तीनों के एप्स जो है वो एक ही बार में बन जाते हैं। लाइक यू जस्ट राइट वन कोड बट बिल्ड अलग अलग तरीके से हो जाएगा, वेब का, एंड्रॉइड का और iOS का। वेब का हल्का सा थोड़ा अलग करना पड़ता है बट एंड्रॉइड एंड iOS का एक ही कोड लिखो एंड बिल्ड वो एंड्रॉइड के लिए भी हो जाएगा और iOS के लिए भी हो जाएगा, जस्ट इन वन कोड। एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, इट इज वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ब्लॉकचेन पता ही होगा, वेब 3.0 इज कमिंग सून, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो ब्लॉकचेन इज समथिंग विच इज one of the most highly paid these days. If you want, you can learn blockchain development. You can learn building smart contracts and the apps, which is called decentralized apps. But before blockchain development, it's better to have knowledge either of web development or Android development. क्योंकि तुम apps बना रहे होगे तो या तो web app बनाओगे या Android app बनाओगे, and blockchain उनके ऊपर एक layer होगी, ठीक है। And also ब्लॉकचेन से पहले तुम अगर थोड़ी फाइनेंस की नॉलेज ले लो एंड मैथ्स थोड़ी अच्छी आती हो तो दैट इज गुड। एंड गेम डेवलपमेंट कर सकते हो तुम, दैट इज इन C# लैंग्वेज यूजिंग यूनिटी इंजन। और अगर वेब पे गेम्स बनाने हैं तो यू कैन हैव जावास्क्रिप्ट फॉर दैट, JS।
एंड दैट वो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं वेब पे गेम्स. सो गेम डेवलपमेंट जो बेसिकली लार्ज तरीके से होती है दैट इज यूजिंग यूनिटी, और देर इज वन मोर कॉल्ड अनरियल इंजन, या यूजिंग सी शार्प एंड ऑल्सो AR/VR डेवलपमेंट. एक रिसेंटली वर्कशॉप हुई थी बाय समर सिंह ऑन AR, एंड आई थिंक तब फ्रेशर्स नहीं थे, तो उसके बाद हम फिर से एक बार फ्रेशर्स के लिए करवा देंगे ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप कैसे बनवाना है, एंड दैट टू विदाउट कोड एंड इवन विद कोड. तो वो सब पॉसिबल है. यू कैन एक्सप्लोर दीज थिंग्स. बाकी इनके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिसमें भी इंटरेस्ट आए जस्ट गो फॉर इट. सो डू वन थिंग. डेवलपमेंट में इतनी फील्ड्स तो हैं, इसके अलावा और भी हैं. जस्ट इट्स बेटर टू बी मास्टर इन वन. कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वगैरह वगैरह. तो इन सब के बारे में पढ़ो, एक्सप्लोर करो थोड़ा, ब्लॉग्स पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, एंड फिर जस्ट शॉर्टलिस्ट फ्यू ऑफ देम जो तुम्हें लगे कि यू आर गुड एट इट और यू लाइक इट. जस्ट शॉर्टलिस्ट देम, नोट इट डाउन. अब लाइक मान लो कि तुमने 15 के बारे में पढ़ा एंड यू लाइक 7 ऑफ देम. 7 को शॉर्टलिस्ट करके रख लो, and out of those 7 try all of them one by one for around 7 days, 10 days or even 15 days, as much as you want. but 15 days से ज़्यादा लंबा मत करना, because you are just exploring it. and उनमें से जो भी तुम्हें बेस्ट लगे, जिसमें भी तुम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, stick to it. and उसका फ्यूचर भी थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए. तो प्लान अकॉर्डिंगली. एंड अपने मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स तुम उसमें भी बना लो, उसके अलावा कोई और टेक डोमेन हो उसमें भी कर लो, तो दैट इज गुड. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अमेजिंग प्रोजेक्ट्स. मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट इज रियली गुड टू हैव अमेजिंग प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे. दैट्स व्हाई वी लर्न डेवलपमेंट. After development, there are some people who are planning for masters or PhD, so they will be more into research side. तो रिसर्च का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट इट इज समथिंग they just keep on looking for answers to questions of their great interest. डेटा एनालाइज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना, वो सब काम रिसर्च में होता है. एंड इन CSE बेसिकली रिसर्च किन सेक्टर्स में होती है, दैट इज एल्गोरिदम्स. एल्गोरिदम्स में भी देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स, तो उन पे रिसर्च वगैरह चलते रहती है. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, दैट प्रोसेसर्स, CPUs, microprocessors, compiler, etc. And other than this, we have computational physics, chemistry, and bioinformatics. Genetic engineering you might be knowing. तो ये सब रिसर्च का पार्ट होता है, सुपर कंप्यूटर्स भी. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, इफ यू आर प्लानिंग फॉर मास्टर्स और PhD, तो तुम मोस्टली इंटर्नशिप की जगह रिसर्च इंटर्नशिप कर रहे होगे अंडर सम प्रोफेसर, मे बी ऑफ सम डिफरेंट ऑफ सम फॉरेन यूनिवर्सिटी और फ्रॉम आवर प्रोफेसर इटसेल्फ. तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है मेरे को, बट यू कैन एक्सप्लोर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ CSE. एंड देयर आर अदर सब फील्ड्स ऑफ CSE जिसमें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अभी डरने की जरूरत नहीं है. दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट. विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग जिसमें जॉब्स फिलहाल बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, बट लोगों ने ज्यादा सीखी नहीं है. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, यू कैन गो फॉर इट. अदर देन दीज वी हैव नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर्स का मैनेजमेंट करते हैं. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस अगर पता हो तुम्हें, तो डेटाबेस का जो एडमिन होता है, सब कुछ मतलब इंसर्ट करना, डिलीट करना, उसको पूरा मॉनिटर करना, दैट इज द रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. Data scientist. Data scientist is one of the highest paying jobs in CSE. और डेटा एनालिस्ट उसका जूनियर रोल मान लेते हैं. बट डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो आजकल माना जाता है कि दे आर हाईएस्ट पेड. बट डेटा साइंस का क्या है कि इट इज लिमिटेड. सब कह रहे हैं कि इन फ्यूचर वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, बट एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट. दे आर हाईली पेड. बट जैसे ब्लॉकचेन है, दैट इज इमर्जिंग, उसमें कई सारी चीज़ें पॉसिबल है. तो डेटा साइंस में इट विल बी लिमिटेड. तो सोच समझ के चूज अ करियर पाथ. एंड अदर देन दिस, यू हैव मैथमेटिकल फाउंडेशंस, एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं. कंप्यूटर विजन जो इमेज और वीडियो का होता है, लाइक इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो प्रोसेसिंग. और NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विच इज स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच. रोबोटिक्स है. और ये सब तुम देख लेना, काफ़ी कुछ है. लाइक साइबर सिक्योरिटी है. और हार्डवेयर साइड है तो फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स है, डेटाबेसेस है, कंपाइलर्स है. एंड ये कंकरेंट, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है. सो दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट इन योर 7th सेमेस्टर. इसका तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को लगेगा. बट दीज आर अदर सब फील्ड्स ऑफ CSE लोग करते हैं. तुम्हें जो फोकस करना है दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो मेजरली लोग करते हैं. तो 5 चीजें उसमें मेन है, विच इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सिस्टम डिजाइनिंग, कि हाउ टू डिजाइन द डिजाइनर सॉफ्टवेयर. लाइक डिजाइनर सॉफ्टवेयर मतलब उसकी लुक्स नहीं, बट उसका डेटाबेस डिजाइन करना, या फिर उसका यूजर फ्लो डिजाइन करना, ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है. यू विल बी हैविंग अ कोर्स
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन योर सिम 5 और 6, तो उसमें ये सब सिखाया जाएगा. And then there is software testing, data structures and algorithms. These are 5 important things. इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, I'll be telling you later on. And then ये भी है automated theory and quantum computing. If you are interested, this is really very bad. मुझे कभी पसंद नहीं आया, बस ABCD चलता रहता है उसमें. So let's skip it. Other than this, we have open source. So they call it OSS. So OSS is basically open source softwares which are free to use by public. वो बड़ी बड़ी कंपनीज का हो सकता है, लाइक यू माइट हैव हर्ड अबाउट react.js. दैट इज अ फ्रेमवर्क. तो react is from Facebook, which is open source, so people can even contribute to React framework itself so that they can modify it accordingly. And open source, if you want to explore open source, so it is a complete world in itself, and uska superhero we can say it is Git and GitHub. And I think अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो एक बार बोल दो कि it's too fast, क्योंकि ये एक इन्फो सेशन टाइप ही है. अनम्यूट करके बोल देना, आई कांट सी योर चैट्स. ठीक है, कपिल और जन्मय, अगर कोई चैट बोले तो जस्ट टेल मी. ठीक है. तो सुपर हीरो गिट एंड गिटहब है. गिट एंड गिटहब इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो इनटू ओपन सोर्स, एंड नॉट जस्ट फॉर दैट. गिट एंड गिटहब इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन डेवलपमेंट. यू कैन मेंटेन एंड अपलोड ऑल योर प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब. तो अगर यू आर विलिंग टू लर्न गिट एंड गिटहब, अगर नहीं, यू हैव टू लर्न गिट एंड गिटहब. ओके, तो एक सिंपलेस्ट मेथड मैंने बनाई है वीडियो, इस पे क्लिक करके देख लेना तुम लोग बाद में. बट इसके अलावा भी काफी कुछ है सीखने को. मैंने तो बस बेसिक्स ही सिखाया, बट इन अ सिंपल वे, सो दैट यू कैन मेंटेन योर प्रोजेक्ट्स. उसके अलावा काफी कुछ होता है इफ यू वांट टू गो इनटू ओपन सोर्स. ठीक है. तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इफ यू वांट टू गो टू ओपन सोर्स, यू वांट टू ट्राई इट, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट सम कोड, तो हाँ, ओपन सोर्स में जो कोड होता है वो सारा पब्लिक को अवेलेबल होता है. तो जो फर्स्ट मिशन टू मून था अपोलो 11 का, वो भी तुम यहाँ पे कोड जाके देखोगे तो इट इज कम्प्लीटली पब्लिक, एंड पूरा कोड दिखेगा तुम्हें उस स्पेसक्राफ्ट का. एंड हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स? तो प्री रिक्विजिट एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक स्टैक आना चाहिए. Either it can be MERN-Stack. MERN-Stack is MongoDB, Express.js, React.js and Node.js. Web development के लिए use होता है, one of the most famous. और there is Django, which is a Python web framework, जिसमें Python use करके तुम backend बनाते हो वेबसाइट का. और Flutter, जिसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बनाते हो. कुछ भी तुम्हें एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, सो दैट तुम वो कंट्रीब्यूट कर पाओ अपना कोड. इसके अलावा तुम्हें जो आना चाहिए दैट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मतलब गिट और गिटहब. मतलब गिटहब के और भी थोड़े ऑप्शंस होते हैं, गिटलैब एंड बिटबकेट, बट वाइडली यूजेस गिटहब. तो लर्न गिट एंड गिटहब वेरी वेल. ठीक है. And how can you start with it? Just first learn Git by making a habit of maintaining and pushing all your projects in GitHub. Whenever you go for a project, agar you are learning from it, a tutorial or something, go to GitHub, make a repository and upload your project there as well. And how can you contribute to open source? So for example, तुम्हें Django आता है, so you can search for a project which is made using Django. And if you find some difficulties in searching for such project, you can try this website which can help you get that. तो यहाँ तुम्हें इस पे क्लिक करके वो वेबसाइट मिल जाएगी. You can search for such projects. And then जब तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिल जाए, एक रिपोजिटरी मिल जाए, read its readme and contributing.md very well. readme पे they have given information about the project itself, and contributing में they have given about all the details about contribution guidelines. So start solving with beginner friendly issues. Matlab, there is a tab on GitHub called issues. We can have a separate workshop or like hands-on workshop on open source later on. I'll be teaching you all that, but it is an info session. तो अभी के लिए इतना काम चला लो. So start with solving beginner friendly issues. छोटे छोटे जो issues होते हैं, like अगर किसी को HTML आता हो तो या CSS भी आता हो, तो just changing the color of the nav, तो वहाँ पे तुम्हें बस एक वैल्यू चेंज करनी है. So you will pull the code from repository to your local machine. You will change that particular color, that value, and then you will push that code to your repository, and then you will create a PR, which is called pull request. So that is like a request. You are sending a message to them that I have made these changes. If you please review these changes. If it is fine, if you are ready to accept it, then please merge this with your main code. So that जैसे ही वो merge कर देंगे कोड तुम्हारा, all the changes which you have made will be made live on their project too.
So that is how contributing to open source works. And other than that, you can join the organization's communication channels for that project. Like if you are working for Fosacia, तो उनके अपने अलग चैनल्स होते हैं, इधर ऑन स्लैक और गिटर और डिस्कॉर्ड, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है. तो देयर आर मेनी पीपल who daily contribute to open source. If you once join them, you will get to know about it, and that is everything for free. But there is one thing which is called Google Summer of Code. You might have heard of it. So it is a 3 months long program by students, and abhi to it is also for professionals. So it is something like annually 20 to 50 organizations participate in Google Summer of Code, open source organizations, and they submit their projects that we are going to bring these projects for this year. And after that, after the announcements of the organizations, the students who are willing to participate in GSOC go and review all those projects, and उन्हें अपनी choice का कोई भी project मिलता है, तो they start contributing to it for around 3 to 4 months पहले से. Like announcement अगर January February में हो रहा है, तो they start contributing from September October itself. It is a pro tip if you want to get selected in GSOC. तो target that particular organization 5 to 6 months beforehand of the announcement. And how can you do that? तुम last year का GSOC देखो कि last year 2021 GSOC में कौन कौन से organizations थी, 2020 में कौन सी थी, 2019 में कौन सी थी, उससे पहले की भी. तो there are many organizations जो हर बार participate करती हैं और उनका project भी कई बार same होता है. तो start contributing to such organizations. तुम उनको जानते होगे, तो वहाँ पे maintainers होते हैं projects के, तो they will be in contact with you. And once you the program is announced and you will submit a what do we call that, a proposal. ठीक है, proposal to that particular organization that I wish to participate in GSOC and I want to contribute in this project of your organization. अगर वो मेंटेनर तुम्हें पहले से जानता होगा एंड तुम अपने वो दिखाओगे कि तुमने पहले कितने कंट्रीब्यूशंस करे उनके लिए, तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड इस पे जो GSOC के लिए अगर हमें एक वर्कशॉप रखनी होगी, तो हम फिर से एक और बार रखवा लेंगे. देयर इज आवर सीनियर मोनल शादी सर जो GSOC में सिलेक्ट हुए थे, तो आई विल आस्क हिम टू थ्रो सम इनसाइट्स टू यू. एंड इसके अलावा वी हैव हैकटोबरफेस्ट, गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, आउटरीची, MLS फेलोशिप एंड मेनी मोर. All these are kind of similar. Hacktoberfest थोड़ा अलग है. It is just to make 4 pull requests and you will get a T-shirt. And open source अगर तुम्हें explore करना है, तो there is a game called TulioQuest. यहाँ पे click करके just install it, and वो game की तरीके से तुम्हें सिखा देगा कि what basically open source is. It's like a world. So it's interesting. You can try it. I'll be sharing the PPT later on. And then we'll talk about impressive profiles. फायदा क्या impressive profiles का? See, we are in triple IT, not in IIT. IITs का तो क्या होता है कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट्स आर रियली वेरी गुड, कंपनीज काफी आ रही है, ऑलमोस्ट सब प्लेस हो रहा है. बट इंटर्नशिप्स लेनी है या सेकंड ईयर में भी या थर्ड ईयर में भी, तो इट्स बेटर टू हैव सम इम्प्रेसिव प्रोफाइल्स. क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज और जितने हाई पैकेजेस IITians को मिलते हैं, हमको उतने नहीं मिलते. टीयर 3 से अच्छे मिलते हैं काफी, बट स्टिल नॉट, नो ऑफेंस टू एनीवन. बट टू बेस्ट सोशल मीडिया फॉर यू आर LinkedIn एंड Twitter. LinkedIn की लिंक यहाँ मैंने डाल दिया है अपने प्रोफाइल की. तो if you are not on LinkedIn, create your profile today after this session, and when you'll be creating your profile, just complete it and try to have an all-star profile. All-star मतलब fill all the details as much as it is asking. ठीक है? And keep updating your LinkedIn profile regularly. Keep updating मतलब there is a section called experience या फिर volunteer experience और education. तो तुम्हारा कोई experience है, तुमने कहीं internship करी, तो update about it. ठीक है, कि टुडे आई हैव स्टार्टेड विद दिस इंटर्नशिप. वहाँ या तो पोस्ट बनाना चाहते हो तो पोस्ट भी डाल दो, अगर एक्टिव रहोगे तो थोड़ा तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा एंड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी. एंड ट्विटर पे यू कैन फॉलो ग्रेट प्रोफाइल्स जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, जो ऑलरेडी काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज हैं यहाँ अपने ओपन सोर्स वर्ल्ड में या फिर CSE के दुनिया में. तो अदर देन दिस, you can maintain all your tech profiles well, like GitHub पे you can watch profiles of our seniors, जिनकी बहुत ही अच्छी, आशुतोष राठी सर की एंड काफी लोगों की. तो इसके बाद you can also maintain HackerRank and CodeChef. HackerRank, CodeChef पे तभी if you are interested in CP, जरूरी नहीं है, बट HackerRank पे 5 स्टार होना दो. अगर सब पे आ जाए तो तुम्हें कोडिंग थोड़ी अच्छे से आ जाएगी, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी. HackerRank तो कर ही लेना एक बार.
जावा करनी है तो जावा का कर लेना, सी प्लस प्लस करनी है तो उसका कर लेना, एंड देयर आर वेरियस सब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह उस पे होता है, डीबीएमएस भी होता है, तो जैसे जैसे तुम्हारा कोर्स है यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। और इट्स बेटर इफ यू हैव एन अमेजिंग ऑनलाइन एक्सपीरियंस, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव अ पर्सनल वेबसाइट और अ पोर्टफोलियो ऑफ योर ओन, तो तुम अपने रिज्यूमे में मेंशन भी कर दो कि लिंक डाल दोगे तो इट लुक्स गुड। इफ यू स्पेशली इफ यू आर अ वेब डेवलपर इट्स बेटर टू हैव योर पोर्टफोलियो। और ब्लॉग वेबसाइट हो तो और भी बढ़िया बात है, where you keep updating your blogs, मतलब many people do, our seniors do, that's why I did, if you want you can do that too। और resume is important, तो keep updating your resume, also try that तुम्हारा जो resume हो वो 1 पेज का हो, even till the 4th year, तुम 4th year में तब भी 1 पेज का ही रखना, it is preferred, companies like it, because अभी तक तुम fresher हो, सब कुछ नहीं डाल देना है resume में। एंड यहाँ मैंने एक टेम्पलेट दे रखा है, यू कैन फॉलो दिस, इट इज कॉल्ड DDCB टेम्पलेट ऑन overleaf.com, तो उसको बस हल्का सा एडिट वेडिट करके यू कैन डाउनलोड योर PDF, बट ट्राई कि 1 पेज का हो, इवन इफ यू आर सिटिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स, क्योंकि 2 का होता है तो इट डजंट लुक गुड, आई डोंट नो व्हाई, बट कई सारी कंपनीज वाले HR वगैरह को पसंद नहीं आता फ्रेशर्स के लिए। इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 4 to 5 years जॉब करते हुए 5-6 साल हो गए हैं तब तो 2 पेज का बनता है, तो इट्स अकॉर्डिंगली ओके। एंड नेक्स्ट इज कैंपस एम्बेसडर रूल्स। Other than this, like, you know, you can earn money being a student too if you want to, it's better if like to have money, कौन नहीं चाहता पैसा, so there are some campus ambassador roles, so you can be a face of your campus in some company, organization or some competition like TechFest होता है IIT बॉम्बे का, you can be their campus ambassador, तो like वो कुछ टास्क देंगे छोटे मोटे that bring some these registrations or all, तो या फिर इतना शेयर करो या फिर ये इवेंट करवा दो, you can do that and you will get incentives accordingly depending on the company or college, and also it will enhance your network, तो तुम्हें opportunities और बढ़ेंगी, जितने ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करोगे, बाहर के लोगों से भी, सिर्फ अपना कॉलेज लिमिटेड नहीं है, दूसरे कॉलेजेस के, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के भी, तो इट्स बेटर फॉर यू। वो उनके कॉलेज में कुछ चल रहा होगा, लाइक स्टे इन टच विद स्टूडेंट्स ऑफ अदर कॉलेजेस, उनके कॉलेज में कुछ चल रहा है जो हमारे कॉलेज में नहीं चल रहा, तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो अबाउट इट एंड यू कैन शेयर दैट इन योर कॉलेज टू, ठीक है। और इससे क्या होगा कि तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे, 10 ग्रेट रेफरल्स, यू नो, वेन एवर यू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स और ऑफ कैंपस जॉब्स, तो तुम्हारे चांसेस मोस्टली तभी होते हैं वेन एवर यू हैव अ रेफरल मतलब इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर गूगल, then it's better if you get a referral from someone who is already working at Google, तो प्लान अकॉर्डिंगली। हमारे मेरे बैच में भी कुछ लोगों ने ऐसे किया है, देयर इज अ गर्ल हु इज प्लेस्ड इन लिंक्डइन, तो शी गॉट अ रेफरल फ्रॉम समवन ऑन लिंक्डइन, शी माइट बी नोइंग दैट पर्सन फ्रॉम पहले से, तो इट्स बेटर टू क्रिएट सम ग्रेट कॉन्टैक्ट्स जो ऑलरेडी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, स्टे इन टच विद देम, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बना लो, या जो भी तुम्हें करना है। इंटर्नशिप भी चाहिए सेकेंड ईयर के बाद भी या थर्ड ईयर के बाद भी, फर्स्ट ईयर के बाद भी तो वैसे ज़्यादा मिलती नहीं, बट टेक लाइक कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग काइंड ऑफ मिल सकती है, तो रेफरल्स काफ़ी काम आते हैं, बीट एनी काइंड ऑफ थिंग, और रेफरल जिसके पास होता है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, ठीक है। एंड देन कैंपस एम्बेसडर रूल्स कौन कौन सी कंपनी के हो सकते हैं, इट इज गीक्स फॉर गीक्स, आई थिंक कैंपस मंथली और समथिंग, कोडिंग निंजास, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, मत करना, आई होप यू अंडरस्टैंड। वन प्लस का भी ठीक है, टेक्फेस्ट IIT बॉम्बे का भी ठीक है, बट कुछ कंपनीज है जिनका करना काफी फायदा होता है, तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। तुम्हारी खुद के कॉलेज में तो नेटवर्क बढ़ेगा ही, बाहर भी बढ़ेगा। एंड देन वी हैव कम्युनिटीज, ग्रुप्स एंड क्लब्स, इट्स बेटर टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ देम, बिकॉज कॉलेज के सिर्फ 4 साल हैं, या 3 है या 2 हैं, जितने भी बचे हैं, तो डांसिंग है, सिंगिंग है, ड्रामा है, फोटोग्राफी है, जो तुम्हें कभी मन था कि या मन करता है अभी भी बट डरते हो करने से, तो फर्स्ट ईयर में तो सबको ही लगता है, पैर कांपते हैं सबके, तो यू कैन गो फॉर दैट, ट्राई दैट, बिकॉज बाद में तो जॉब करनी है या बिजनेस करना है, जो भी करना ही है, जितनी जिंदगी जी सकते हो, एक्सप्लोरेशन कर सकते हो कॉलेज लाइफ में, कर लो, मजे ले लो, उसके बाद ही तुम पे डिपेंड करता है मजे लेना या ना लेना, बट स्टिल ऐसा ना हो बाद में रिग्रेट करो कि काश मैंने कॉलेज में ट्राई कर लिया होता, काश फोटोग्राफी या फिर कोडिंग क्लब या डांसिंग क्लब ज्वाइन कर लिया होता, एंड मेनी मोर, ठीक है, तुम जानते हो कि कौन कौन से क्लब्स हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। इंट्रोस तो सबके ऑलमोस्ट हो चुके होंगे, जिसमें भी इंटरेस्ट है गो फॉर इट, एंड हमारे कॉलेज में तो चिल भी है सब, कि कुछ इंटरव्यूज वगैरह ज्यादा होते ही नहीं, इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन यू आर ऑलमोस्ट वेलकम, ठीक है।
तो एंड देन देयर आर ग्रुप्स विच इज लाइक वन फेमस ग्रुप इज गूगल डेवलपर ग्रुप्स. अब गूगल डीएससी एंड जीडीजी विच इज गूगल डेवलपर ग्रुप्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? गूगल डीएससी हमारा जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है और इन इंस्टीट्यूट लेवल कि ट्रिपल आईटी वडोदरा का अलग होगा, ट्रिपल आईटी सूरत का अलग होगा, आईआईटी का अलग होगा. बट गूगल डेवलपर ग्रुप्स जो होते हैं इट इज रीजनल बेस्ड और सिटी बेस्ड. तो गूगल डेवलपर ग्रुप बड़ौदा का अलग होता है, गांधीनगर का अलग होता है, एंड काफी जगह ऐसे अलग अलग होता है. एंड इनके कुछ बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं विच इज कॉल्ड डेव फेस्ट एंड एफ फेस्ट. जब भी होगा, like what you can do is join their search for them, join their Slack channels, Twitter channels और Discord channels. If you are in Lucknow, I think अगर लखनऊ का कोई जीडीजी हो या जिस भी सिटी में हो, सर्च फॉर इट. नहीं हो तो आसपास का कोई भी ज्वाइन कर लो. तो जब भी वहाँ कोई डेव फेस्ट होगा या एफ फेस्ट होगा, यू कैन गो फॉर इट एंड दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत मजा आएगा. डेव फेस्ट मैंने खुद अटेंड किया है, जीडीजी बड़ौदा और गांधीनगर दोनों का. सो इट वॉज अमेजिंग. वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह भी होते हैं छोटे छोटे, यू कैन विन प्राइजेस टू. एंड देन देयर आर communities, student communities या technical communities कह सकते हैं. So first is Google DAC. It is the world's largest student technical community. And then we also have Microsoft Learn Student Ambassadors. And then we have GitHub Campus Experts and many such more. But तीन बड़े अगर मैं स्पेशली बताऊं तो these are Google DAC, Microsoft LSA, मतलब Learn Student Ambassador, and GitHub Campus Expert. So Google DAC is something in our college. Lead is always from the 4th year, like he's in his final year. Core team होती है एक. तो मेजरली तो लीड और कोर टीम का काम होता है एंड सपोर्ट टीम का. लाइक पहले तक क्या होता था हमारे 2 साल 2018 एंड 19, सॉरी 19 एंड 20, या जो भी 2 साल पहले थे, ठीक है. तो उसमें लीड होते थे 4th ईयर से एंड कोर टीम होती थी 6-7 लोगों की. बट दिस ईयर ऑनवर्ड्स वी हैव इंक्रीज द काउंट सो दैट सबको अपॉर्चुनिटी मिले, सबको चांसेस मिले. तो वी ऑल्सो हैव मेंटर्स. मेंटर्स आर फ्रॉम 3rd ईयर और 4th ईयर टू, एंड सपोर्ट टीम फ्रॉम 2nd ईयर. सपोर्ट टीम इज जस्ट लाइक अ कोर टीम, ठीक है. And volunteers and mentors are almost a similar thing. Volunteers are also from 2nd year. So if you wish to be a part of Google DSC, you can be a part of you can join that as volunteers or support team in your 2nd year, or in 3rd year as mentor or core team, or 4th year तक आते आते you can be a lead. वो Google से interview होता है, like leads are interviewed by Google, उसके बाद ही वो select करता है उनको. And there is always one lead per campus. And Microsoft लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स क्या होता है? इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट कम्युनिटी. यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, यू कैन एक्सप्लोर अबाउट इट. बट इट इज नॉट लिमिटेड कि सिर्फ देयर कैन बी ओनली वन माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर पर कैंपस. देयर कैन बी मेनी. इफ यू वांट यू कैन अप्लाई फॉर दैट इन द फर्स्ट ईयर टू, ठीक है. यू कैन सर्च फॉर इट. यू कैन बी अ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर इन योर फ्रेशमैन ईयर. It is really very amazing. You will love it. So you can explore about it on your own. And if you want to apply for it and you're facing any doubts, you can either DM me or message me on Discord. Okay. If many people are like, I'm also Microsoft Learn Student Ambassador, and if we can have much more MLSCs, like अगर तुम्हारे साथ 5-6 या 6-7 लोग और आ जाएं तो we can create a community like Google DAC भी already है, तो एक Microsoft की community भी हम college में start कर सकते हैं. If you are ready for that, ठीक है. तो if you whoever are interested, just DM me. And then GitHub Campus Expert is responsible for Git related workshops, और इसको swags बहुत ज़्यादा मिलता है, Microsoft और Google से भी ज़्यादा, stickers बहुत ज़्यादा मिलते हैं basically. And GitHub is a child company of Microsoft itself, LinkedIn too, ठीक है. तो GitHub Campus Expert is also one per campus. And अभी क्या है, अभी I think someone from 3rd year or 4th year कोई GitHub Campus Expert है, तो जैसे ही he'll be passed out, like उनका tenure पूरा हो जाएगा, someone else can become. तो आई थिंक अप्रैल में इसके फॉर्म्स स्टार्ट होंगे, यू कैन अप्लाई फॉर दैट. और माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर की एप्लीकेशंस थ्रू आउट द ईयर स्टार्ट रहती है, मतलब ऑन रहती है. यू कैन अप्लाई फॉर इट एनी टाइम. एक वीडियो वगैरह बना करके सबमिट करनी होती है, समथिंग लाइक दैट. जस्ट एक्सप्लोर अबाउट इट. और काफ़ी सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे इफ़ यू कैन जॉइन दीज कम्युनिटीज. ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर योर रेज्यूमे. रेज्यूमे में अगर शो करता है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ गूगल DAC इन योर कॉलेज, देन इट इज़ रियली वेरी गुड. इट विल बेनिफिट यू अलॉट, ठीक है. And then we have to focus on personality development. Like if we talk about interviews, then सबसे पहले communication skills तो आनी चाहिए, because you are going to talk to that interview, right? So you should be good at English or even at Hindi, but you should be confident of whatever you are speaking, ठीक है. And then you should have management and leadership skills. It's better to have, so that projects करो या teamwork करो, तो you will be
like doing it very well, and you can mention that in your resume too. तो प्रायोरिटी क्या है कि जिसकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी वो पहले सिलेक्ट होता है इंटरव्यूज में. इवन इफ लाइक आई एम टेलिंग यू, किसी कोई एक बंदा है जिसकी टेक्निकली बहुत टेक्निकली अच्छा है बट उसकी पर्सनालिटी कुछ नहीं है, और एक बंदा है जिसको पर्सनालिटी का भी अच्छी है, टेक्निकल कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, तो दे विल प्रेफर दिस वन बिकॉज दे आर हायरिंग अ ह्यूमन नॉट अ रोबोट. ठीक है, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है. So it's better to focus on your personality too, and you have got 4 years or 3 years. Or college is the best place to develop your personality. I'm telling you, you can do it by joining your clubs and all, or you can enhance your public speaking skills. Like तुम्हारे अगर सपने बड़े हैं, you want to start a company of your own, or you want to become a public speaker, you can start it by now itself. Like as if your mentors do, or I am doing right now. You can host events and also think big. So and try to be optimistic and energetic. ये कुछ टिप्स हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, काफी काम आएंगी. स्टे हेल्थी एंड क्लीन, और ऑल्सो लर्न अबाउट बॉडी लैंग्वेज. दिस मैटर्स अ लॉट. बॉडी लैंग्वेज की खुद की भी एंड तुम सामने वाले की भी पढ़ लो तो इट मेक्स योर लाइफ इजियर. ठीक है, काफी काम आसानी से करवा सकते हो तुम खुद के. एंड हैकाथॉन्स, हैकाथॉन्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर कई सारे हैकाथॉन्स होते रहते हैं. तो इसके लिए इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, लाइक दे हैव अमेजिंग प्राइजेस इन lakhs of rupees. और डिपेंड्स कि अगर वर्ल्ड बेस्ड हैकाथॉन है लाइक सॉल्यूशन चैलेंज अभी जल्दी होने वाला है, विल बी इन्फॉर्मिंग अबाउट इट, तो उसमें करोड्स में भी होते हैं. लाइक सबको नहीं, मतलब एक टीम को तो लैक्स में मिलेंगे, बट स्टिल. तो इफ यू आर रियली वेरी गुड एट टेक स्टैक, यू कैन हैव अ डाइवर्स टीम. लाइक यू इन अ टीम यू कैन हैव अराउंड 3, 4 और 5 पीपल, जिसमें से किसी एक को फ्रंट एंड में काफी अच्छा हो, कोई बैक एंड में काफी अच्छा हो, कोई एंड्रॉइड या फ्लटर में काफी अच्छा हो, कोई यूआई यूएक्स में अच्छा हो, एंड इनमें से कोई एक गुड लीडर भी हो, सो दैट प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए टाइम में. एंड जो मोस्टली हैकाथॉन्स होते हैं दे आर अराउंड 24 आवर्स, 48 और 36 और 72 आवर्स ऐसे होते हैं कि 3-4 दिन का टाइम मिलता है. किसी किसी में 15 दिन या 1 महीने तक का भी मिल जाता है, बट रेयरली ऐसा होता है. तो हैकाथॉन्स के लिए भी गिट एंड गिटहब इज अ मस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन्स आस्क यू टू अपलोड योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब इटसेल्फ. ठीक है, and some hackathons can also provide job in big tech giants too. Jobathons भी कह सकते हो ना. And if you are planning for hackathons and if you want to win, then you can plan to make something on blockchain and AR VR. Okay. Also, if you want to know that hackathon कब हो रहा है, सिर्फ कॉलेज में नहीं बाहर के भी, तो stay active on Twitter and LinkedIn to get updates about various hackathons. और एक वेबसाइट है Devfolio. I have provided the link. Just click on it and अभी there is a hackathon which is about to happen soon. Eternals नाम है उसका, तो यू कैन ट्राई फॉर दैट. अभी जीतने की मत सोचना, सोचो तो अच्छा है, थिंक बिग, कीप थिंकिंग बिग, बट ट्राई फॉर इट, प्लीज एक्सप्लोर इट. तो 4 साल जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे. एंड देन देयर आर सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसपे बाकी पढ़ो ना पढ़ो, मतलब पढ़ो वैसे सब कुछ, बट ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी. बट कुछ कंपनीज होती हैं जो लाइक अडोबे डीएसए से तो पूछती है, बट उनसे भी ज्यादा दे आस्क फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब सिस्टम डिजाइनिंग बेसिकली, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो दीज आर सम सब्जेक्ट्स जिस पे ज्यादा फोकस करना है. ये तुम्हारे जो लास्ट के 4 सब्जेक्ट्स लिखे हैं वो सेमेस्टर 4 में आएंगे मोस्टली, और कंप्यूटर नेटवर्क सेमेस्टर 5 में आएगा. बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब पढ़ा रहे हो तब अच्छे से पढ़ना. एंड दीज क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज आर आस्क्ड फ्रॉम दीज subjects too. Okay. And then there are some important website. तुम्हें सबसे पहले when you want to learn something, whether it be DSA or web development, YouTube तो best है ही. ठीक है. Then you have Coursera, Udacity, EDX, Udemy, etc. And practice करनी है तो DSA के लिए it's best if you practice it on Geeks or Geeks. And अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बाकी कंसेप्ट के लिए go for HackerRank. एंड जब तुम लगो कि हाँ अभी इंटर्नशिप का टाइम आ गया है, यू वांट टू प्रैक्टिस, तो गो फॉर लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट. इंटरव्यू बिट इज रियली वेरी गुड. इफ यू लाइक जब तुम्हारी प्लेसमेंट्स पास आ रहे हो तो इंटरव्यू बिट और लीड कोड कंप्लीट कर लेना, काफी आसान से हो जाएगा तुम्हारा. एंड सोशल मीडिया है 2, लिंक्डइन एंड ट्विटर. इसके अलावा गिटहब एंड स्टैक ओवरफ्लो टू. स्टैक ओवरफ्लो इज समथिंग लाइक हमारा सेवियर, जहाँ तुम्हें कहीं भी बग आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो स्टैक ओवरफ्लो पे ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिल ही जाते हैं. Just Google that bug and you will find it on Stack Overflow or Stack Exchange. And other than this, मैं directly नहीं बोल रहा, but I am naming it as scholarship, financial aid and discount for courses.
See, we all are students, and it's good if you are promoting teachers by paying them, but education should be completely free, ऐसा I believe. तो ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री में अवेलेबल है एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स. सो यूडेमी के इफ यू वांट सम डिस्काउंट और फॉर फ्री, यू कैन सर्च फॉर दैट कोर्स नेम एंड उसके आगे जस्ट ऐड 100% ऑफ कूपन्स ऑन गूगल एंड देन ओपन सम वेरियस वेबसाइट्स एंड कीप ऑन ट्राइंग सम कूपन्स. तो कई बार ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें 100% या 80%, 90% डिस्काउंट मिल जाता है. अदरवाइज यू कैन सर्च फॉर टॉरेंट फाइल्स, बट उसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. एंड ट्रस्ट मी, यूडेमी का सर्टिफिकेट इतना मैटर नहीं करता. पहले कोर्सेरा का करता था, बट अभी भी उसको सब हल्के में लेता है. यूडेसिटी इज समथिंग रियली बिग, उसके बारे में भी आते हैं. बट कोर्सेरा पे तुम्हें कोर्सेज करने हैं तो वहाँ कोर्सेज आर हाईली पेड. So what you can do is apply for financial aid, and like when you will go to the course, there will be a small button ki financial aid available. Click on that and there will be a form. They will be asking you some questions ki why do you want financial aid or something. So I have provided simple answers for that. You can just edit it according to your course. Click on this and you'll be redirected to that Google Doc. And they generally take 15 days for review, and 15 days होते ही complete होते ही तुम्हें वो कोर्स मिल जाएगा कोर्सेरा पे, बट कंप्लीटेड. ओके, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड, एंड यू कैन मेंशन जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीट करने पे, तो यू कैन ऐड दैट सर्टिफिकेट ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. ठीक है. एंड देन देयर इज Udacity. Udacity इज समथिंग लाइक अ एजुकेशन इन इटसेल्फ, मतलब वो एक डिग्री मान ली जाती है. तो उनकी जो नैनो डिग्री प्रोग्राम होती है ना, काइंड ऑफ डिग्री, नैनो डिग्री उसमें वर्ड ही आ गया. तो नैनो डिग्रीज, मेरे एक सीनियर ने बोला था, नैनो डिग्री अगर किसी पे हो तो कई सारी कंपनीज तो खुद उठा के ले जाती हैं, दैट तुम चलो हमारे साथ. तो इफ यू वांट नैनो डिग्री, इफ यू वांट टू कंप्लीट इट, हमारी जो लास्ट ईयर की गूगल ये लीड थी, उनके पास डीप लर्निंग की नैनो डिग्री थी, एंड नाउ शी इज इन माइक्रोसॉफ्ट. तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली उन्हें माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गई, शी क्लियर्ड ऑल हर इंटरव्यूज, बट इट इज एन एड ऑन. वो तुम अपने रेज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो दैट यू हैव अ नैनो डिग्री. उसकी लिंक वगैरह आप दे सकते हो रेज्यूमे में. एंड उसको स्कॉलरशिप्स अगर तुम्हें चाहिए, नैनो डिग्री 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक की भी होती है. 5 लाख तो नहीं होती होगी, बट स्टिल इतनी लैक्स में होती है नैनो डिग्री. तो इट इज बेसिकली अ 6 मंथ लॉन्ग कोर्स. पहले वो क्या करते हैं, स्कॉलरशिप्स देता है, बर्टल्समैन एंड इंटेलिजिया है. उसके अलावा काफी कंपनीज हैं जो स्कॉलरशिप देते रहती हैं. तो इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड फॉर फ्यूचर स्कॉलरशिप्स, यू कैन रजिस्टर हियर. यहाँ मैंने लिंक दे दिया. स्क्रॉल टू द बॉटम एंड प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस. तो नेक्स्ट टाइम कोई भी स्कॉलरशिप आएगी तो यू विल गेट एन ईमेल एंड यू विल बी अपडेटेड अबाउट इट. तो जैसे ही पता चले तो जस्ट फिल द फॉर्म एंड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे वो, एंड आंसर इट अकॉर्डिंगली. मतलब काफी अच्छे से आंसर करना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, छोटे छोटे मत लिख देना. तो तुम्हें मोस्टली नैनो डिग्री मिल जाएगी, बट वो कंप्लीट नहीं मिलती. नैनो डिग्री नहीं मिलती एक्चुअली, तुम्हें कोर्स मिलेगा. एंड 6 मंथ्स का है तो तुम्हें 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का एक्सेस मिलेगा. एंड फिर वो एक डेडलाइन दे देंगे कि तुम्हें ये 2 मंथ्स या 3 मंथ्स से पहले कंप्लीट करना है. ठीक है. ऑल्सो दे विल आस्क यू टू जॉइन देयर डिस्कॉर्ड और स्लैक चैनल. मोस्टली स्लैक होगा, उस पर एक्टिव भी रहना है. फिर उसके बाद वो कुछ शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो बंदा जिसने कंप्लीट करी हो सारी, ऑब्वियसली सारे कोर्सेज, आदि मतलब नैनो डिग्री, एंड जिसने जो थोड़ा एक्टिव रहा उनके स्लैक चैनल में, उनकी कम्युनिटी में, उसको वो आगे की नैनो डिग्री भी दे देते हैं. फिर जैसे ही वो कंप्लीट कर लेता है कोर्सेज, लाइक 6 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, तो उसको नैनो डिग्री एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, एंड इट इज रियली वेरी गुड. तो यू कैन ट्राई फॉर इट. ठीक है. एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन अभी तो कोई जरूरत नहीं है, बट बेसिकली मैं एक फ्लो बता दूं तुम्हें कि क्या होता है, सो दैट यू कैन प्लान योर 4 years अकॉर्डिंगली. तो पहले मोस्टली रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है, तो यू शुड बी हैविंग अ ग्रेट रेज्यूमे. एंड जो भी तुम रेज्यूमे में लिखो, यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल. ठीक है. क्योंकि वो किसी भी वर्ड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, किसी प्रोजेक्ट से, किसी भी वर्ड से. तो फिर उसके बाद कोडिंग राउंड होता है या मोस्टली एप्टीट्यूड राउंड होता है. तो कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन गो फॉर हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड. बस डीएसए स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए सॉल्यूशंस की, मतलब सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को. और एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करना है तो यू कैन गो फॉर अ वेबसाइट विच इज कॉल्ड indiabix.com. यहाँ मैंने लिंक दे दिया. यू कैन प्रैक्टिस दैट ऑन दीज. अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू विल बी इन योर 3rd year, जब तुम्हारी इंटर्नशिप के सीजन आ रहा होगा या फिर प्लेसमेंट का आ रहा होगा, तो यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दीज थिंग्स. बाकी यूट्यूब पे यू कैन सर्च फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ऑल. एंड ओवरऑल प्रिपरेशन करो तो इंटरव्यू बिट नाम की एक वेबसाइट है, जैसे पहले मेंशन किया था. इस पे सब कुछ हो जाएगा. इस पे डीएसए भी हो जाएगा, ऊप्स भी हो जाएगा, डीबीएमएस, ओएस, सब कुछ.
इफ अगर तुम में से कोई काफी पैशनेट है जो अभी से ज्वाइन करना चाहता है, अभी से प्लान करना चाहता है, तो अभी से इंटरव्यू बिट स्टार्ट कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे कोर्सेज आते जाए, अभी शायद तुम्हारी नहीं होगा या नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, तो अकॉर्डिंगली प्लान करना। और मॉक इंटरव्यूज तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। थिंक आउट लाउड, दिस इज अ टिप। लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंटरव्यूअर है, दे वांट टू नो हाउ यू थिंक, द वे यू थिंक, योर उनका तुम्हारा थॉट प्रोसेस जानना चाहता है वो। तो तुम जो भी सोच रहे हो, जस्ट स्पीक इट लाउड। ये सब लोग बोलते हैं, एंड काफी लोगों को पता भी होगा तुम लोगों में से। जस्ट थिंक आउट लाउड सो दैट दे विल एटलीस्ट गेट टू नो हाउ यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। भले ही तुम्हें सॉल्यूशन पहुंचे ना पहुंचे, बट उन्हें अगर तुम्हारा तरीके का मतलब सोचने का तरीका पसंद आया, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ऐसा कई लोग करते हैं कि अंदर ही अंदर सॉल्यूशन सोच रहे हैं, डायरेक्टली आंसर बोल दिया। तो जो इंटरव्यूअर है उसको ये भी लगता है कि इसने पहले से कर रखा होगा, तो डायरेक्टली बोल दिया। तो अगर आता भी हो पहले से, तो जस्ट शो हिम एज इफ यू आर जस्ट थिंकिंग इट राइट नाउ। ठीक है। और सेकंड पॉइंट इज कि इंटरव्यूअर इज टू हेल्प यू गेट हायर्ड। वो वहां तुम्हारी हेल्प करने बैठा है कि तुम सिलेक्ट हो जाओ। तो तुम उससे कभी भी हेल्प के लिए पूछ सकते हो, लाइक सर कैन यू प्लीज, सर और मैम कैन यू प्लीज हेल्प मी और जस्ट टेल मी दैट इन विच डायरेक्शन शुड आई थिंक। तो लाइक दैट ही विल श्योरली हेल्प यू एंड हेल्प कर देगा। एंड तुम अगर उसके बाद आंसर कर दोगे तो तुम्हारे चांसेस बढ़ गए। बट पूछने से कभी डरना मत, एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और अभी सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, काफी जल्दी, नहीं काफी जल्दी तो नहीं। तो व्हाट इज टू डू फॉर यू फ्रॉम टुडेज सेशन, आज क्या कर लेना कि क्रिएट योर अकाउंट ऑन लिंक्डइन एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड एक्सप्लोर करना थोड़ा लिंक्डइन को, कनेक्शंस बढ़ाना थोड़े से, जिसने नहीं स्टार्ट किया हो। आई हैव सीन काफी लोगों ने किया है फर्स्ट ईयर में से भी, बट बाकी लोग भी कर लेना। एंड क्रिएट योर अकाउंट ऑन गिटहब एंड अदर वेबसाइट्स ऑफ योर चॉइस। गिटहब पे बना लेना, गिटहब सीखना स्टार्ट कर देना। ऑल्सो देर इज समथिंग कॉल्ड गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक। तो तुम्हारी जो इंस्टीट्यूट की ईमेल एड्रेस है ना, गिटहब पे अपना अकाउंट बनाओ। तो वहाँ दो ऑप्शंस होंगे कि ऐड प्राइमरी ईमेल एड्रेस एंड ऐड सेकेंडरी ईमेल एड्रेस। तो प्राइमरी पे कीप योर इंस्टीट्यूट आईडी, मतलब अपने रोल नंबर वाली, एंड सेकेंडरी पे अपनी पर्सनल वाली डाल देना। तो क्या है, जो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक है वो स्टूडेंट आईडी पे ही मिलता है। तो प्राइमरी तुम्हें इसलिए रखोगे तभी गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक मिलेगा। उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हें अराउंड 2 लाख रुपए तक का खर्चा बच जाता है तुम्हारा, 1 साल का बोलो या 4 साल का बोलो, अगर तुम पूरा यूज कर पाओ तो। मतलब कई सारी सर्विसेज हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पेड होते हैं, बट स्टूडेंट्स को वो फ्री में दे दिए जाते हैं जस्ट बाय दिस इंस्टीट्यूट ईमेल एड्रेस। आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले डिस्कॉर्ड पे एक लिंक भी शेयर करी थी यूट्यूब की, उसमें भी इसके बारे में बताया था। अगर नहीं किया हो तो यू कैन अवेल दैट टुडे इटसेल्फ और टुमारो, जब भी तुम्हें टाइम मिले। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज एक्सप्लोर फॉर योर फेवरेट टेक डोमेन फॉर प्रोजेक्ट्स। मतलब एज आई हैव टोल्ड यू दैट प्रोजेक्ट जरूरी है रेज्यूमे के लिए, ठीक है। तो दैट इज फ्रॉम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कई सारे डोमेन्स हैं। तो रीड अबाउट ऑलमोस्ट एवरी ऑफ देम, वीडियोस देख लो, एंड कुछ शॉर्टलिस्ट करो। जो शॉर्टलिस्ट करे हैं, ट्राई एंड एक्सप्लोर देम फॉर अराउंड 7 to 10 days स्ट्रिक्टली। बट ऐसा ना हो कि तुम उसमें घुस ही जाओ कि और बाकी ट्राई ना कर पाओ। स्ट्रिक्टली फॉलो करना कि 10 दिन ट्राई करूंगा, फिर दूसरे पे स्विच कर लेना। एंड जो भी शॉर्टलिस्ट करे थे उन सबको ट्राई करो। जो भी बेस्ट पसंद है उसमें तुम मास्टर करने का ट्राई करो, जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ मैं अपना फ्यूचर इसमें काम कर सकता हूँ। लाइक इन द कंपनी इन विच आई एम वर्किंग राइट नाउ एज एन इंटर्न, तो वहाँ आई एम वर्किंग एज अ बैकएंड डेवलपर। तो मैंने ये पहले से डिसाइड करके रखा था कि हाँ आई कैन फॉलो माई करियर इन द बैकएंड पार्ट। मेरे को फ्रंट एंड पसंद नहीं है, मेरे को ब्लॉकचेन पसंद नहीं है, वॉट एवर, बट बैकएंड मेरा काफी अच्छा है, तो आई कैन डू दैट, आई कैन लिव माई लाइफ डूइंग दैट। क्योंकि ये फिर लाइफ की बात होगी कई लोगों के लिए जिनका सिर्फ लाइक जॉब का प्लान है। तो काफी अच्छे से सोच समझ के ही प्लान करना, लाइफ उसी में काटनी होगी। एंड उसके बाद कुछ प्लान एंड मेक अमेजिंग प्रोजेक्ट्स। सी एज यू आर अ बिगनर राइट नाउ, फ्रेशर हो, सेकेंड ईयर पे हो, तो मैनी ऑफ यू माइट बी हैविंग प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे लाइक टू डू लिस्ट और वेदर ऐप, जो काफी ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे वो वाले। इन द वेरी फर्स्ट ईयर इट इज गुड, बट जैसे तुम सेकेंड ईयर में आओ या फिर थर्ड ईयर में आओ, तो लाइक थिंक अबाउट सम ग्रेट आइडियाज। खुद से कुछ आइडिया सोचो एंड मेक अ प्रोजेक्ट। अब वेदर इट बी एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, तुम अकेले बनाओ, या टीम प्रोजेक्ट किसी के मिलके साथ, तब साथ में अपने स्कूल कॉलेज के हो या बाहर के भी हो चलेगा। तो वो भी अपने सारे लिंक्डइन पे मेंशन करके रखो, अपने रेज्यूमे भी। रेज्यूमे में 4-5 तो रखो मिनिमम। 5 में से लाइक 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हो, मैं प्लेसमेंट के टाइम तक की बता रहा हूँ कि 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हो, एक टीम हो, एक इंडिविजुअल हो, 2 मीडियम हो और एक छोटा प्रोजेक्ट भी हो, जो काफी, बट पांचों के पांचों थोड़े इनोवेटिव हो, जिसमें आइडिया काफी अच्छा हो एंड कुछ अच्छे एल्गोरिथम्स वगैरह यूज कर लिया।
तो आइडियाज के बारे में कैसे सोचना अबाउट प्रोजेक्ट्स। तो व्हाट आई डिड वाज दैट आई एम एन एमसीयू फैन और एवेंजर्स स्पेशली। तो मैं कुछ भी टेक सीखता था, लाइक आई लर्न अबाउट जैंगो या आई लर्न अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी, तो मैंने उसमें एवेंजर्स घुसा दिया। तो जैंगो सीखा तो आई मेड एवेंजर्स ऑफ गिटहब नाम का एक प्रोजेक्ट। ऑगमेंटेड रियलिटी सीखा तो जार्विस बनाया एक ऑगमेंटेड रियलिटी प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था उसमें। तो तुम अपने चारों ओर देखोगे, तुम्हें आइडियाज मिल जाएंगे, या सीरीज देखो, मूवीज देखो, एंजॉय करो, तो वहां से भी तुम्हें आइडियाज मिलते रहेंगे। बट रेज्यूमे में जब तुम इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो वो वाले प्रोजेक्ट जो होते हैं टू डू लिस्ट या फिर वेदर ऐप वगैरह जो सब लोग लगा के रखते हैं, वो मत लगाना, बिकॉज दैट इज द लीस्ट प्रायोरिटी। सबको पता है कि ये सारे तो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, ये सब फर्स्ट ईयर में सब अच्छे होते हैं, सेकंड ईयर में भी अच्छे होते हैं, बट इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो हैव सम गुड वंस, तो तुम्हें प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। एंड द अदर थिंग इज कि प्रैक्टिस डीएसए ऑलमोस्ट एवरी डे, जैसे ही स्टार्ट हो जाए। अभी यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, फ्रेशर्स जितने भी हैं और जो सेकंड ईयर के भी यहाँ पे हैं, वो उनका एल्गोरिदम्स चल रहा होगा आई थिंक। तो जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो, अच्छे से पढ़ लेना। इन केस कॉलेज में समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट जस्ट नोट डाउन द टॉपिक जो आज पढ़ाया हो एंड लर्न दैट टॉपिक फ्रॉम योर फेवरेट यूट्यूबर ऑन द वेरी सेम डे। बट लर्न इट कंटिन्यूसली, और एक बार सीख लो अच्छे से, उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ऑलमोस्ट एवरी डे, एटलीस्ट एक क्वेश्चन करो। मैं सीपी का नहीं कह रहा हूँ, बट डीएसए का तो करो, क्योंकि अगर ये कर लोगे, जो भी साइड वाइज को फॉलो कर लेगा, वो आज से 2-3 साल बाद काफी अच्छी जगह पे होगा। ठीक है, बिकॉज 2-3 साल बाद क्या होना है वो मैं देख चुका हूँ, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तो इट्स बेटर इफ यू कैन डू इट। अदरवाइज अभी फर्स्ट ईयर में तो चलेगा, बट सेकेंड ईयर में जो लोग हैं वो स्टार्ट कर दो अच्छे से। एंड देयर आर सम टिप्स कि जो लाइफ में काफी काम आएगी। हैव अ गुड फाइनेंशियल नॉलेज, क्योंकि हम इंजीनियर्स को पता नहीं होता कि हाउ टू सेव टैक्सेस या हाउ टू इन्वेस्ट वगैरह, तो ये सब भी सीखते रहो। देयर इज अ यूट्यूब चैनल बाय अंकुर वारिको, मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट इट, तो follow him, and there are many amazing influencers on Instagram too, so you can follow them. And also it is good to have a stable and proper mindset मतलब be optimistic and think big. And कई बार ऐसा होगा that you will be demotivated by other people कि ये कैसा है यार, ये ऐसे ही करते रहता है। तो just know that कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि तुम कैसे हो, तुम अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। एंड बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब, कई लोगों का अगर लगता है कि इसका मतलब क्या है, तो इट इज लाइक जो भी तुम चाहते हो ना, या जो भी तुम बनना चाहते हो, जस्ट एटलीस्ट कोई और माने ना माने, तुम तो मानो कि हाँ यू कैन डू इट, तो यू विल बी एबल टू डू इट। और जो भी अपने बारे में डाउट्स हैं, फियर्स हैं या सेल्फ लिमिटेशंस हैं, उनको भूल जाओ एंड फोकस ऑन द गुड पार्ट, फोकस ऑन द पॉजिटिव। कुछ दिन ऐसा ट्राई करके देखो, जस्ट फोकस ऑन द गुड, तुम्हारी लाइफ खुद अच्छी लगने लगेगी। एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा करोगे, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी है, दुनिया इतनी बड़ी है, हमें खुद कुछ कुछ नहीं पता। तो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करो, क्या पता तुम्हें तुम्हारी पैशन मिल जाए। ठीक है। ऑल्सो रीड बुक्स लाइक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और एटॉमिक हैबिट्स एटसेट्रा, दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट। मैं पर्सनली ये पढ़ता हूँ, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली भी लूंगा, तो काफ़ी हेल्प करती है, दैट्स आई एम टेलिंग यू। ऑल्सो ड्रिंक मोर वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। बाकी इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो डू यू हैव एनी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, या अगर किसी ने चैट लिखा है तो जन्मे, कैन यू रीड दैट आउट? हाँ सर, चैट में लिखा था एक में कि अपग्रेड is also offering some free courses with free certification of completion. So will it be worth in LinkedIn profile? एक्चुअली नॉट, सी सर्टिफिकेट्स जो है ना, बाकी यूडासिटी के अलावा बाकी सारे इतने वर्थ इट नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर में तुम यू कैन पोस्ट अबाउट इट, यू कैन ऐड इट, बट जो मैटर एक्चुअली करता है दैट इज प्रोजेक्ट्स एंड योर एक्सपीरियंस। तो फोकस मच मोर ऑन हैविंग प्रोजेक्ट्स। जो भी तुमने कोर्स में सीखा, सर्टिफिकेट मिल गया ठीक है, बट तुमने उसका किया क्या? लोग यही चाहेंगे ना, जिसने प्रोजेक्ट बनाया है उसको सीख के, वो उसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि सीखना अलग चीज होती है, खुद ट्राई करना अलग चीज होती है। व्हेन यू विल ट्राई डेवलपमेंट, तुम्हें पता चलेगा कि काफी कुछ अलग होता है, कितना कुछ फेस करना पड़ता है, एंड उसके आंसर सारे गूगल पे मिलता है, मे बी अगर कोर्स में नहीं बताया हो तो यू कैन गो फॉर अपग्रेड। अपग्रेड इज गुड, बट क्या है, आई हैव नोटिस्ड, अभी का पता नहीं, बट पहले 2-3 साल पहले, 1-2 साल पहले, ये था कि दे गेव अ कोर्स बट वो कंप्लीट नहीं था, एंड देन दे सेड कि कंप्लीट लेना है तो पे वगैरह करो, वट एवर। तो अपग्रेड इज गुड आई अकॉर्डिंग टू मी। बट जो मैंने बताया डीएसए के, कि यूट्यूब पे डीएसए का जावा में इट इज कुणाल कुशवा एंड सी प्लस प्लस में इट इज अब्दुल बारी।
बाकी जो भी तुम्हें फॉलो करना है यू कैन फॉलो। वेब डेवलपमेंट के लिए देयर इज अ कोर्स ऑन यूडेमी, वो फ्री में तुम्हें टॉरेंट फाइल मिल जाएगी बाय एंजेला यू एप ब्यूरिका। तो द इट इज अ वेब डेवलपमेंट बूट कैंप, यू कैन ट्राई फॉर दैट। बाकी इफ यू वांट टू नो अबाउट अदर रिसोर्सेज लाइक अदर डोमेन्स, तो वी विल सून बी हैविंग वर्कशॉप्स, ऑल आवर मेंटर्स एंड को टीम्स विल बी होस्टिंग इट, तो वो सब बता देंगे उसके बारे में। एंड अपग्रेड इज गुड, लाइक यू कैन ऐड इट ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, बट इट वोंट मैटर Excuse me, मच। sir. हाँ Sir, I have just started the coding and I don't know about all these things. So can you just tell me how should I proceed? And about all which things? sir, these data structures and algorithms and all this अभी part. अच्छा, you are in you are a fresher or second year? Yes, a fresher, but I don't know about the coding also, sir. I just started it now. हाँ तो अच्छा, इफ यू वांट टू लर्न कोडिंग तो डायरेक्टली अभी डेटा स्ट्रक्चर फ्रेशर्स को मैं बोल रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे तभी जाना तो पहले कोडिंग अच्छे से सीख लो। ओके, कोडिंग पहले अच्छे से आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर ओओपी भी नहीं, बट एटलीस्ट कोडिंग है, सो दैट you are able to solve basic questions like add two numbers or loops or pattern questions. Okay, and if you want to learn coding, there is a channel called Code with Harry. तो जावा की प्लेलिस्ट है, पाइथन की है, सी प्लस प्लस की है, यू कैन स्टार्ट विद दैट, follow it. Don't just stick to the courses which are taught in our institute, because in our institute they are never going to teach you how to make an Android app, how to make a website. I think second semester में या third semester में IT वालों को there will be a subject for web development, but वो भी काफी high level नहीं होगा, basics ही होंगे। ये सब खुद से सीखना होता है, like how to make an app, how to make a website, this all thing should be learned by yourself. तो अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, कॉलेज के पे भी करो, just to maintain a decent GPA. And Code with Harry is a YouTube channel. इसके अलावा if you want to learn Python, there is CentDex and CoreShefo. You can follow them. Sir, my name is Sarvesh Singh, sir. I wanted to ask that is there any good decent book or from any reputed author for projects, engineering projects and other things? Projects के बारे में I don't think that there is some book, or maybe होगी but I don't know about it. But there is a book I forgot to mention about for interview preparation, which is Cracking the Coding Interview. मैंने अपने fourth year start होती खरीदी तो थी, but placement जल्दी हो गई, पढ़ भी नहीं पाया पूरी. But it is really very good. तो जब भी तुम third year में आ जाओ तो you can start practicing it. खरीद लेना, get a hard copy, और free available offline होगी, online होगी, you can get the PDF. And for software engineering, आई प्रेफर कि बुक पे ज्यादा मतलब फोकस मत करो, क्योंकि CSE इज समथिंग जो ऑनलाइन है, सब कुछ वेबसाइट, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर कोई बुक भी लिखी होगी तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, यू कैन सर्च फॉर इट, बट मोस्टली इसके ब्लॉग्स मिल जाएंगे एंड वीडियोस मिल जाएंगी, बुक्स मोस्ट कंपेरेटिवली कम मिलेंगी। अब बुक्स पढ़ने की आदत तो थोड़ी कम हो ही जानी चाहिए तुम लोगों की, एज यू आर अ CSE स्टूडेंट। ठीक है, What some उसको and sir, for learning DSP, and sir, Java, मैं C++ and अपना Java. वो What are those channels? जैसे मैंने कहा, अरे इतनी देर से मैं कहीं पास पास दिख रहा था। क्या फॉर जावा आई हैव मेंशन्ड DSP. अबाउट दैट। हाँ, फॉर जावा आई विल प्रेफर कुणाल कुशवाहा, एंड फॉर C++ अब्दुल बारी। उनकी यूट्यूब एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड कोर्स पूरा यूडेमी पे है। इफ यू वांट दैट टॉरेंट फाइल आई कैन फॉरवर्ड दैट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। Okay. और बाकी देयर इज अ चैनल कॉल्ड कोड विद हैरी, तो वहां पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है। आई हैव माई सेल्फ लर्न Django फ्रॉम देयर। एंड एनी अदर क्वेश्चन? सर मैंने अभी कोड विद हैरी से सी लैंग्वेज खत्म कर ली, वो जो 15 आवर्स का वीडियो था उसमें। हाँ, तो सर अभी मैं आगे सीपी ट्राई करूँ या फिर डीएसए में प्रोसीड करूँ, मतलब आगे मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए? सीपी में जाने से पहले डीएसए अच्छे से सीख लेना, अदरवाइज यू विल बी डिमोटिवेटेड। फिर डीएसए पहले अच्छे से सीख लेना, सीपी मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, बट कभी भी कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा एंड इट्स बेटर कि तुम पहले डीएसए सीख लो। जरूरी नहीं है, सीपी में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं बिगिनर लेवल पे जो डीएसए की जरूरत ना पड़े, बट डीएसए सीखो फिर जाओ तो ज्यादा अच्छा है, वरना डर जाओगे। मतलब सर अभी डीएसए मतलब उसमें भी वो कोड विद हैरी से मतलब स्टार्ट करूँ ना डीएसए को?
कौन सी लैंग्वेज में करना है? सर सी में करना है। हाँ, यू कैन फॉलो, नहीं मतलब कोड विथ हैरी का डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने खुद नहीं देखा है, मतलब 1-2 वीडियोस देखी थी, तो इट्स गुड, बट आई विल प्रेफर कि अब्दुल बारी से सीख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या तुम्हें जिससे भी, जो भी टीचर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे ना, कि जिसका समझाना तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो फॉलो दैट वन। लेकिन एक बार वो ट्राई भी करके देख लो अब्दुल बारी, क्या पता वो ज्यादा अच्छा लगे। तो जो भी ज्यादा कंफर्टेबल हो उसको ही फॉलो करो। आई थिंक अपनी कक्षा पे भी एक वो है, अमन अग्रवाल के चैनल पे यूट्यूब प्लेलिस्ट फॉर C++ DS है, तो वो भी ट्राई कर सकते हो तुम। Okay, एंड sir. बाकी क्वेश्चंस क्या है? कुणाल इज रियली ऑसम, इट्स वर्थ इट, या ही इज। एंड ठीक है, ये करवाते जय वैसे करें या आपने आप आगे आगे भी कर सकते हैं? क्या लिखा है ये? ऋतिक मनीष, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ, अनिल, आई विल शेयर द स्लाइड्स। सर हम्म, सर I'm asking हाँ that ऋतिक सर भी जो बोल। कॉलेज में सर जो क्या? कॉलेज में इंस्टीट्यूट में करवाते हैं सर वैसे वैसे ही करेंगे या फिर हम अपने आप आगे आगे भी कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट में सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तुम्हें, जो बहुत डीप लेवल पे काम आने वाले हैं, मतलब बहुत रेयरली काम आने वाले हैं। बट अगर तुम्हें ऐप बनाना सीखना है, एंड्रॉइड, iOS या फिर वेब वगैरह, इंस्टीट्यूट में वैसा कुछ नहीं सिखाएंगे। वो खुद से ही सीखना पड़ेगा, खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा अलग से टाइम निकाल के। ओके सर। और इंस्टीट्यूट का तो सिर्फ उतना कर लो कि सी पे अच्छी सी आ जाए, तो वो भी काफी है। ऐसा नहीं सर है कि तुम- freecodecamp.org एक चैनल है यूट्यूब पे, उससे हाँ, मैंने अगर दैट इज रियली पाइथन गुड, दैट इज रियली गुड, किया। काफी अच्छा है। बाकी मैं पर्सनली जो बता रहा था कि जहाँ डीएसए ऐसा सब्जेक्ट है जिसके टीचर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं अच्छे से, जो अच्छे से समझा पाए, क्योंकि कोर्स ही ऐसा है वो। तो C++ में अभी तक का बेस्ट जो मोस्टली बोलते हैं वो अब्दुल बारी है, एंड जावा का जो बोलते हैं, अभी रिसेंटली प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है, तो दैट इज कुणाल कुशवाहा। बाकी सारे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से सीख लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना अच्छे से सीख लेते हो। Sir, it would be better if we get all this data in a PDF format. I've provided all the links in that PPT itself, और अभी PPT ही मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। Okay, sir. Thank you, sir. बाकी any questions? Yes, sir. I am just starting our C language, sir. So, sir, what is DCA? I'm not know. Please tell. What is DHA? Don't worry about it. अभी just learn C language, okay? When you will be in your second semester, there will be a subject called data structures. Just learn that very well, okay? Okay, sir. And Pratyush has a doubt. I have started JavaScript and I'm doing C. Just कि institute जितना करवा रहे हैं उतना. I'm planning to start C++ for next month. Will this be a good plan or shall I go for C properly? C. दोनों C++ ऑलमोस्ट सेम है, बट C क्या प्रोसीजरल है, C++ इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो C देखो, C सीख लो सिर्फ उतना काफी नहीं है, बट C के बाद C++ जरूर सीख लेना। भले C सीखो या नहीं सीखो, C++ जरूर सीख लेना, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। Can anyone send the GDSC group link in chat box? Yeah, there is a Discord server, Gunal Gupta. Krish Patel will share it in the group. And K Gautam, how to get started with Project Show? How to get started? I just told you now that just think about some ideas. Whatever your favorite tech stack is, start building it. Upload it on GitHub. Can we run DSA in both? चारू चंद्रा जोशी, लोग किसी एक में भी नहीं सीख पाते DSA, but if you think that you can learn in both, it's better. Like it is really better. But stick to one, ठीक है, वरना confusion बहुत हो जाएगी. DSA is something like that. Just stick to one, either to Java or C++. Like whenever you are exploring about the programming languages, which programming language you have to choose. So either it will be C++ or Java. जो भी ज़्यादा comfortable हो, do DSA in that itself. Simple. Sir, please share the torrent file of Abdul Bari lecture. हाँ, ये भी share करवा देंगे. Please suggest some best resources to learn DSA. Python का DSA, I will suggest that do not learn it in Python. But if you want it, I don't know about it, you can explore it. Like the institute does not have Python curriculum, so should I do certification in DSA Python? You can learn Python from Code with Harry. वहाँ 150 videos है, ठीक है। सर्टिफिकेशन वगैरह doesn't matter much unless it is very great like Udacity और Oracle का Java वाला जो होता है, या फिर क्लाउड सर्टिफिकेशंस होते हैं।
बाकी यूडेमी वगैरह के सर्टिफिकेट्स डजंट मैटर मच, बट इफ यू आर हैविंग दैट, मैंने खुद ऐड कर रखे हैं अपनी प्रोफाइल पे, यू कैन ऐड देम। और जस्ट लर्न विदाउट सर्टिफिकेशन, हाँ लर्न विदाउट सर्टिफिकेशन, जहाँ कंटेंट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, जहाँ से तुम अच्छे से सीख पाओ और फिर अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना पाओ, वहाँ से सीखो। इंस्पायर्ड सर, या थैंक यू। एक्चुअली आई एम कंफ्यूज बिटवीन सीपी एंड ओपन सोर्स, डोंट चूज वन। सीपी एंड ओपन सोर्स दोनों ही क्या ऑप्शनल है, तो ओपन सोर्स अगर दोनों ट्राई करके देखो, ओपन सोर्स में मन लग रहा है, यू आर लाइकिंग इट, तो यू कैन गो फॉर इट। कई लोगों को बड़े बड़े पैकेजेस ओपन सोर्स से मिले, बिना इंटरव्यू दिए जॉब मिल जाती है। सीपी में क्या है कि गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज में कई का नहीं, मतलब कुछ लोगों का क्रैक हो जाता है। फिर इट्स या दीप शाह, थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड जस्ट चारू चंद्रा, जस्ट एक्सप्लोर बोथ ऑफ देम, जो भी ज्यादा बेटर लगे गो फॉर इट। कोई चूज करने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल हो, दोनों कंफर्टेबल हो तो यू कैन गो फॉर बोथ, नहीं हो तो यू कैन गो फॉर नन, बट डीएसए इज इम्पोर्टेंट। अरे भाई थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। इट्स माय बर्थडे, बस एनी मोर questions anyone? If yes, then you can unmute yourself. Thank you so much, thank you party। हाँ आ जाओ, वडोदरा आ जाओ। So please कैंपस provide your contact number, sir. What? Can you provide your contact number, sir? No, I cannot Personal. provide your contact number because कई सारे already messages आ जाते हैं। Whenever you have a doubt, you can ask me on Discord, okay? Or even on Instagram or on Sir, LinkedIn। please share the link. हाँ, अच्छा Kapil और Janmay, can you please share the Discord invite link or here in the chat itself? One more question. Deeksha, please control. Deeksha is from my batch itself. He's my best friend. Sir, a question. नहीं पार्टी के लिए लेट नहीं हो रहा, चलेगा, juniors first। Yeah, Himanshu, they will be sharing the link soon in your One more question is there. Yeah. Sir, if you want to learn machine learning or like AI or like data science, etc., how will a student can learn it, or is it there in the curriculum of 3rd year, 4th year, or Yeah, we have to do it by ourselves? In 3rd year there is a course machine learning, but not deep learning। हाँ, मतलब deep learning is an optional subject, if you want you can go for that too। और फिर like कॉलेज में तो हो गई, बट इफ यू वांट टू लर्न एज अ करियर पाथ तो स्टार्ट इट फ्रॉम सेकंड ईयर इटसेल्फ, सेकंड ईयर लाइक और 4th सेमेस्टर, ठीक है। स्टार्ट पाइथन और लर्न आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी वेल, देन लर्न डेटा एनालिसिस, देन लर्न मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, उसके बाद यू कैन फॉलो इट अकॉर्डिंगली। So we have to do it by ourselves. For machine learning there is a very famous course by Andrew Ng on Coursera, but it is in MATLAB I think, but you can learn concepts from him। and Python में you can look for the code on anywhere, it will be available on GitHub or other websites। Okay, so Chinmay has shared the Discord link, you can join the Discord server, and whenever you have any doubts just ask questions in any of the channel, or you can contact me on LinkedIn or on Instagram। किसी को मिल गया WhatsApp नंबर तो ठीक है, बट ज्यादा मत शेयर करना। Sir, how far? Yeah, Sir, how? सर ये बोल रहा था फर्स्ट ईयर के एंड तक सर मतलब कितना हो जाना चाहिए आपके हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट? सी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी मतलब सी तो सीखोगे ही तुम सब, C++ या जावा वो ठीक से कर लेना, और डेटा स्ट्रक्चर उसमें, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा कोर्स, वो अच्छे से कर लेना तो उतना काफी है। बाकी करो ना करो चलता है, बस एक्सप्लोर करते रहना ये डेवलपमेंट वाला और डीएसए वाला पार्ट, सीपी वाला पार्ट, ओपन सोर्स वाला, बाकी एक्सप्लोरिंग मजे लेते रहो कंप्यूटर साइंस के। हाँ सर, पर आपने जो प्रोजेक्ट्स बोला वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब प्रोजेक्ट्स कैसे, कुछ आइडिया? 3rd ईयर स्टार्ट होने से पहले थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लेना बस। आइडियाज मैंने जो बताया कि हर जगह आइडिया है, तुम कुछ भी सीखो, मान लो तुमने जैंगो सीखा या फिर कोई मर्न स्टैक सीखा, उसमें कोई स्पेशल कंसेप्ट सीखा, एंड तुम कहीं जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, या फिर तुम्हारी कोई फेवरेट थीम है लाइक हैरी पॉटर है, उस पर कुछ बना दो। यू कैन सर्च फॉर माई वन ऑफ माई प्रोजेक्ट एवेंजर्स ऑफ गिटहब। अब उसमें क्या सिंपल सा प्रोजेक्ट है, अपना गिटहब का यूजर नेम डालो एंड गेट टू नो विच एवेंजर आर यू अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। अब उसके पीछे क्या है वो सब मैं अभी नहीं बता रहा, बट ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। देयर इज अ प्रोजेक्ट जारविस जिसमें मेरे को ऑगमेंटेड रियलिटी में इंटरेस्ट था, दीप सर को भी था, उनका भी काफी ऑगमेंटेड रियलिटी का काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, ही विल बी शेयरिंग। तो दीप, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर अबाउट इट?
नो, ओके, बट जहां जाओ वहां आइडिया मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आइडिया के बारे में सोचता रहो, बट मिले तो अच्छा है। 4-5 अच्छे प्रोजेक्ट्स हो उतना काफी है। इनोवेटिव भी नहीं तो जो रेयरली मिलते हो, ऐसे ना हो कि जो यूट्यूब पे बनाना सिखाते हो। राइट Okay, sir. Thank you, sir. learn C++ after that or go for DSA. DSA C में कुछ लोग करते हैं, बट आई वोंट प्रेफर इट, क्योंकि C में oops इतने अच्छे से नहीं सीख पाओगे तुम। इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। C++ में oops है एंड C++ में STL भी है। तो अगर DSA से पहले C++ सीख लो एंड DSA फिर C++ में सीखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जावा, चारू, I learned DSA in Java, मतलब I'm still learning it. And any more questions? Or shall we wrap up? अच्छा, अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन हो, you can ask on Discord और LinkedIn और Instagram wherever, ठीक है? बाकी if you want you can. Thank you, sir. You're welcome. And Thank you, कुछ sir. ऑर्गेनाइजर्स Thank you, होंगे, sir. लोगों यहाँ पे एक बार Thank you, sir. रुकना चाहो तो रुक सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके? जन्मे एंड बाकी लोग, कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरास? दीपचा, स्पेशली यू। Yes, sir. You're welcome, Ashutosh. You're welcome, everyone. Baki, whoever wants to open their camera, you can. You're welcome. कौन है? Janme, are there any volunteers right now? So you can ask them. Volunteers में से तो नहीं है कोई भी। ठीक है। बाकी whoever wants to open their cameras, you can. Janme, are you taking the screenshot? हाँ। You're welcome, Devish. अच्छा, Deep is here. हेलो सर। Hello, Deepcha. How are you? बढ़िया, आप कैसे? सब बढ़िया, आपकी कृपा है। सर रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ तो चलेगा। Let them see. नाइस प्रेजेंटेशन सर। Thank you so much, sir. Appreciate it. Thank you so much. चलो, बाकी जन्मे डन? हाँ सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, थैंक यू। बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. हाँ, you're welcome, हिमांशु। थैंक यू सर। अभी सबको वो भिजवानी है, क्या भिजवानी है? PPT। Sir, LinkedIn account की